شلیہ قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال عارضوا علي رقاكم لا بأس بارقي ما لم يكن فيه شرك. ان عوف بن مالک الشجعی، حضرت عوف بن مالک الشجعی سے روایت ہے، قالا کہا انہوں نے، کننا نرقی، ہم دم کرتے تھے، مطلب کچھ چیزیں پڑھتے تھے، کچھ کیا بولتے ہیں منتر وغیرہ پڑھتے تھے اس طرح کے، پھر جہالیتی یعنی کہ جہالیت کے زمانے سے. جہالیت کا زمانے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کسی کو اندازہ ہے؟ جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی یہ آئے گا کہ جاہلیت کے زمانے میں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جی صحیح. جاہلیت کا مطلب، کیونکہ ہم لوگ حدیثوں کی جو ہے حدیثوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جب کبھی یہ لفظ آئے گا کہ جاہلیت کے زمانے میں، یعنی جب تک وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے یا نبوت سے پہلے کی بات، اس کا مطلب دو طرف بھی ہوگا. صحیح کہ ہم دم کرتے تھے پھر جاہلیت کے زمانے میں. فقلنا، بس ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف ترى، آپ کیا فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے، فی ذالک، اس بارے میں، کس بارے میں جو ہم لوگ دم کرتے تھے، فی جاہلیت کے زمانے میں. فقالا، تو فرمایا، آریدو، تم سب پیش کرو. آریدو کون سا صیغہ ہے؟ آپ لوگ اب تو کافی ایکسپرٹ ہو گئے صیغوں کے تعلق سے. آریدو کون سا صیغہ ہے؟ واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے؟ ماشاءاللہ، صحیح، جمع کا صیغہ ہے. آریدو، تم سب پیش کرو. ویسے ترجمے سے معلوم ہو جا رہا ہے سب پیش کرو، لیکن جمع کے صیغے کی جو علامت ہوتی ہے واو، صیغے کے آخر میں واو ہوگا، واو ساکنہ، تو اس سے معلوم ہو جائے گا اپنے کو کہ جمع کا صیغہ ہے. آریدو، تم سب پیش کرو، علیہ، مجھ پر، رقاکن، اپنے دم، یعنی جو کلمات تم پڑھتے تھے، جو منتر تم پڑھتے تھے، وہ مجھ پر پیش کرو. لا باسا، کوئی حرج نہیں، بارکی، دم میں، یعنی وہ چیز جو پڑھتے اس میں، معلوم یکن، جب تک نہ ہو، فیہ، اس میں شرک، کوئی شرک کا نظریہ، کوئی شرکی کلمات جب تک نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو مجھ پر پیش کرو، میں چیک کرتا ہوں کہ وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. بعد محاورہ ترجمہ جو بنے گا، حضرت عوف بن مالک الشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد، یہ سوال کب کیا؟ جب تم لوگوں نے ایمان لا لیا. ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان منتروں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو ہم لوگ فالو کرتے تھے؟ سرکار نے فرمایا، اپنے منتر مجھے سناؤ، ان منتروں میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ ان میں شرک نہ ہو. جن منتروں میں، اس کی حدیث کی وضاحت ہے، جن منتروں میں جن اور شیاطین کے نام نہ ہوں اور ان کے معنی سے کفر لازم نہ آتا ہو، تو ایسے منتروں کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. علماء کرام نے فرمایا کہ جس منتر کا معنی معلوم نہ ہو اسے نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو شاعر علیہ السلام سے صحیح طور پر منقول ہو اسے پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ اس
मालूम ना हो। सदर शरिया बदर तरीका मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अपनी मायानाज़ तालीब बहर शरीयत में लिखते हैं। ये बहर शरीयत में है, किसका कौल है? मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी, उनका जो बहर शरीयत में इन्होंने तालीब बयान की है कि गले में तावीज़, ये और से सुने आप लोग, ये आप लोगों की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती चीज़ें, गले में तावीज़ लटकाना जायज़ है। गले में तावीज़ लटकाना जायज़ है जबकि वो तावीज़ जायज़ हो। मतलब क्या है तावीज़ का जायज़ होने से? मतलब यानी आयात कुरानिया या अस्माए इलाहिया या अदिया यानी दुआओं से तावीज़ किया जाए। कौन कौन सी चीज़ें? या तो आयत कुरानिया लिखी है उसके अंदर, या अस्मा हुस्ना, या कुछ दुआओं से अगर उस तावीज़ में लिखा गया है तो ये चीज़ें जायज़ है, उसको गले में लटकाना जायज़ है। और बाज़ हदीसों में जो मुमानत आई है उससे मुराद वो तावीज़ात हैं जो नाजायज़ अल्फाज पर मुश्तमिल हैं, जो ज़माने जahलियत में किए जाते थे। इसी तरह तावीज़ात और आयात और अहदीस व अदिया को रकाबी में लिखकर मरीज़ को बानियत शिफा पिलाना भी जायज़ है। अक्सर औक़ात हम लोग करते हैं या बाज़ जगहों पे जाते हैं, मिलाद में या कोई उस शरीफ में या कोई महफिल होती है, तो किसी प्याले में या रकाबी में उसमें कुछ भी पुरानी आयत भी लिख सकते हैं हम लोग, दुआ भी लिख सकते हैं, हदीस लिख के उसका पानी हम लोग ये नियत के साथ कि इससे शिफा मिलेगी मरीज़ को भी पिला सकते हैं, ये भी जायज़ है। जुनूब यानी जिस पर गुस्ल फर्ज हो, वह हाइज़ा और नफसा यानी हाइज़ा निफास वाली औरत, वो भी तावीज़ात को गले में पहन सकते हैं, बाजू पर बांध सकते हैं, बशर्ते कि वो गिलाफ में हो, जबकि गिलाफ में हो। तो यहाँ से हमें मालूम हो रहा है कि तावीज़ वगैरह अगर वो तावीज़ जायज़ हैं तो बिल्कुल हमारे लिए तावीज़ जायज़ का मतलब, ये सवाल आ सकता है कि तावीज़ जायज़ का मतलब क्या है और उसकी तारीफ फरमाएं। तो अगर उसके अंदर आयत कुरानी लिखी हो, अस्माए इलाहिया हो या अदिया यानी दुआओं से अगर उस तावीज़ को बनाया गया है तो ये जायज़ तावीज़ है, इसको हर कोई पहन सकता है बशर्ते कि वो गिलाफ में है। इसी हदीस की बिना पर सूफी किराम फरमाते हैं कि अमल की तासीर के लिए शेख को अमल सुना लेना, उससे इजाज़त ले लेना मुफीद है, अगरचे अमल करने वाला उसके माना जानता हो। ये तहदीस दुआ, तहदीस नेमत अगर किसी से इजाज़त ले ली जाए तो उनकी दुआएं भी हमारे साथ शामिल हो जाती हैं। ये सूफी किराम का कौल है, ये हदीस का हिस्सा नहीं है। अगली हदीस अल हदीसु अस्साबी अशरा, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज। 17वीं हदीस है अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह अक्सिरु व ज़िक्रा हाज़िमु लज़्ज़ाति अल मौती। हज़रत अन अबी हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, क़ाला कहा उन्होंने, क़ाला रसूलुल्लाह फरमाया अल्लाह के रसूल ने, अक्सरु ज़िक्रा यानी अक्सो बेशतर याद करो, जिक्र करो, अक्सरु ज़िक्रा हाज़िमु लज़्ज़ाति यानी लज्जतों को खत्म कर देने वाली। लज्जतों को खत्म कर देने वाली क्या चीज है? आगे लिखा है अल मौत यानी मौत को। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज यानी मौत को अक्सर व बेशतर याद करो। हर शख्स की मौत उसकी दुनियावी लज्जतें, खाने पीने सोने वगैरह के मजे को फना कर देती है। हाँ, मोमिन मुर्दे को जिंदों के जिक्र और
मुर्दों को जिंदों के जिक्र और तिलावत कुरान से लज्जत आती है। नीस ज़ियारत क़ब्र करने वाले से उन्स होता है। बरज़खी यानी आलम बरज़ख की लज्जतें पाता है तो यहाँ की लज्जतों से कहीं आला हैं। उलमा फरमाते हैं रोज़ाना जो मौत को याद कर लिया करे उसके लिए दर्जाए शहादत है। इस हदीस में मौत को याद करने की ताकीद इसलिए की गई ताकि हम क़यामत के इम्तिहान और ज़ाद आखिरत के हुसूल से गाफिल न हो जाएं। वैसे हमारा जो रोज़ का मामूल हम लोग 3 हदीस पूरी करते हैं, लेकिन आगे भी 1-2 हदीस और पढ़ देता हूँ ताकि क्योंकि अगले महीने हमारे को वक्त नहीं मिलेगा, ज़्यादा 20 दिन ही मिलेंगे, आखिरी हफ्ते तो एग्ज़ाम रहेगा। अल हदीस सामने अशरा मौत की आरज़ू। अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह ला यतमन्ना अहदु मिनकुम अल मौत इम्मा मुहसिनन फलअल्लहु अन यज़दादा खैरन व इम्मा मूसियन फलअल्लहु अन यस्तआतिबा। यानी अन अबी हुरैरा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है क़ाला कहा उन्होंने क़ाला रसूलुल्लाह फरमाया अल्लाह के रसूल ने ला यतमन्ना यानी तमन्ना ना करे, आरज़ू ना करे, आहदु मिनकुम तुम में से कोई भी अल मौता मौत की, इम्मा या तो मोहसिनन वो होगा वो नेक, फला अल्लाहु मुमकिन है शायद, अन यज़दादा के ज्यादा करे वो खैरन कोई नेकी, व इम्मा या तो मूसियन होगा वो बुराई करने वाला, फला अल्लाहु शायद अन यस्तआतिबा राजी कर ले वो किसको अल्लाह को। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में कोई मौत की आरजू ना करे, इसलिए कि अगर वो नेकोकार होगा तो शायद और ज्यादा नेकी करे, और अगर बदकार होगा तो शायद तौबा कर ले और अल्लाह को राजी कर ले। इसकी वजाहत, इसका मतलब, हदीस का मतलब यह है कि मोमिन की जिंदगी बहरहाल अच्छी है क्योंकि आमाल इसी में हो सकते हैं। दुनियावी तकालीफ जैसे बीमारी या गरीबी वगैरह की वजह से मौत की तमन्ना करना मकरूह है, इसलिए कि ये बेसब्री और तकदीर इलाही से नाराजगी की निशानी है, जबकि दीनी ज़रर के खौफ से मौत की तमन्ना करना मकरूह नहीं। अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी मुलाकात के शौक में मौत की तमन्ना करना इसी दुनिया की तंगी और परेशानी से छुटकारा हासिल करने और मुल्क आखिरत और जन्नत में पहुंचने के लिए मौत की आरजू करना ईमान और इसके कमाल की निशानी है। सुभान अल्लाह। एक हदीस और कर लेते हैं हम लोग, सूरह यासीन के ताल्लुक से है। अल हदीस तासी अशरा अन्नाकिल इब्नी यसारी क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु इक़राउ सूरतुल यासीन, सूरह यासीन अला मौतकुम। हज़रत माकिल बिन यसार से रिवायत है काला कहा उन्होंने क़ाल अन्नबिय्यु फरमाया अल्लाह के नबी ने इक़राउ पढ़ो तुम सूरतुल यासीन, सूरह यासीन शरीफ अला पर मौतकुम तुम्हारे मरने वालों के। हज़रत माकिल बिन यसार से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने मरने वालों के करीब सूरह यासीन पढ़ो। जाहिर मुराद यह है कि मौत के वक्त सूरह यासीन पढ़ी जाए, यह भी हो सकता है कि मौत के बाद घर में पढ़ी जाए या खबर के सराहने पढ़ी जाए। कुरान मजीद की हर सूरा में कोई खास फायदा होता है, सूरह यासीन में हल्ले मुश्किलात की तासीर है। चलिए इंशाल्लाह अगले जो बाकी की हदीसें आंदा, अभी हमारे कितने हदीस हो गई, 19 हदीस हो गई, तो 20 हदीस और 20 हदीस 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 20
इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो आगे की 4 क्लासों में ख़त्म कर दूंगा, हुआ तो कल भी ये क्लास ले लूँगा मैं, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा वक्त मिल जाए पढ़ने के लिए। आप लोग जो अरबी ज़बान के 10 सबक हैं उसकी तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए आपको, और तफसीर के लिए भी उसमें भी काफ़ी वक्त चाहिए। वो चीज़ें याद करना है, आप लोगों को पढ़ना है। जो महबूब भाई ने जो 8 उसलूब या 10 उसलूब लिखा है, उसी के पैटर्न पे ही वो चीज़ें याद रखना कि जो उसमें आयत जो है, कोई भी सूरा है, कौन सी सूरत है, मक्की है, मदनी है, कितनी आयतें हैं, शान नज़ुल क्या है, ये पूरी चीज़ें जैसा बहुत ही उन्होंने तरतीब से बहुत अच्छे से समझाया। तो कोशिश करें हर सूरह को एक टेबल बना के उसको बेहतर अंदाज में लिख के याद करके रखें, ताकि जब क्लास हो, एग्जाम हो, तो बिल्कुल आप लोगों को वो चीज़ याद हो। चलिए इंशाल्लाह मैं आज, वैसे तो मेरा इरादा था कि थोड़ा उसवा रसूल अकरम के ताल्लुक से कुछ बोलता, लेकिन इंशाल्लाह कल आगे की क्लास लेंगे, उसमें फैज़ान चहल हदीस के साथ साथ उसवा रसूल अकरम भी इंशाल्लाह ले लेंगे। अगर आप लोगों के पास कुछ सवाल है एग्ज़ाम के ताल्लुक से, या कोई हदीसों के ताल्लुक से, या अरबी ज़बान के ताल्लुक से, पूछ सकते हैं, नहीं तो इंशाल्लाह बाकी की क्लास हम कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।